Welcome back. Let's quickly recap what we have seen last class and we'll take it further. So last class we studied methods. Last two classes हमने method start किया था. We will quickly recap that and we will take it further. So simply हम program लिखते हैं just to get a job done, get a task done, right? So task definition. So if you want to get some job done, so we have tried some set of instructions. तो जो set of instructions है which are enclosed in curly braces, which will have some name, which will accept some input, and which might generate some value. So that is nothing but a simply a task definition or method definition, right? So method के अलग अलग नाम हैं जैसे function, algorithm, implementation, behavior, routine, procedure, process, task, recipe, functionality. There are n number of names are there, right? So this is a method definition. Now, unless and until, जैसे method definition is similar to writing a recipe. Unless and until you take the steps on that particular recipe steps, dish will not be prepared. So similarly, if you are not calling the method, if you are not triggering the method, if you are not invoking the method, then the steps inside the method won't be executed. So what is method in Java or any other programming language? It is simply a reusable, a named reusable block of code to complete a task. It is a series of steps. It is a series of steps to complete a task, which will have a name, which might accept input and generate output, right? So there is only one method that gets called automatically, that is main method that we already discussed. Automatically कैसे कॉल होता है main method? जैसे आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कमांड है जावा स्पेस क्लास नेम जिसके अंदर मेन मेथड हो, right? So method has to be called. There is only one method which gets automatically called. वो भी automatically है नहीं, हम program trigger कर रहे हैं. We are executing that command. Then only JRE is getting started. Then JRE will start this particular method, right? Now method define करने का मैंने syntax बताया था. Access specifier, access modifier, return type, method name, optional input parameters and body. So access specifier will specify what it will specify. Aditya, access specifier, it will specify the scope or visibility or who can access that or from where it can be accessed. तो आपके पास अलग अलग access specifiers हैं जैसे public, private, protected, default and so on. ये अलग अलग आपके पास access specifiers हैं. Access modifiers which will modify the meaning. जैसे कोई static method है, so that means that particular method is common. जैसे कोई method final है, so that means that method cannot be overridden. If method is synchronized, इसका मतलब होता है that method cannot be accessed by multiple thread at the same time. Return type denotes कि आपकी method कौन से type का value return करती है. अगर कोई method value return नहीं करता है, so what we have to specify mandatory, we have to specify void. उसके बाद method name, it should be a valid identifier और optional input parameters. इसे हम parameters बोलते हैं. Now to call a method, we have this particular syntax. एक तो class name रहेगा या reference name रहेगा. Dot method name और जो भी arguments है that we pass. Now based on the usage, we have two types of methods: instance method and static method. अगर आप method define करते हो without static keyword, that becomes instance method. With the static keyword, that becomes static method. क्वेश्चन ये है कि अभी इंस्टेंस मेथड कब यूज करना है और स्टैटिक मेथड कब यूज करना है. तो इंस्टेंस मेथड हम यूज करेंगे जब आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, इंस्टेंस स्पेसिफिक लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, राइट? स्टैटिक मेथड वी विल यूज व्हेनेवर वी वांट टू एग्जीक्यूट सम लॉजिक व्हिच इज कॉमन यूटिलिटी लॉजिक, देन वी गो विद द स्टैटिक मेथड. देन वी आल्सो डिस्कस कि इन मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं. सो इंस्टेंस मेथड को हम कॉल करते हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल and we call a static method using class name, right? This is how we have discussed. Then we also discuss about this keyword. So is there anyone who can help me understand this keyword? Aditya, can you tell me what is this keyword? What current class? Okay. So if you look at this carefully, what is happening?
what this is referring to? Object. So this is a reference variable. It is a keyword that is referring to the current class object. That is referring to the current class object. Example, अभी आप देख रहे हो कि मैंने student class का object create किया. Student नाम का एक reference variable that is pointing to this particular object. That is pointing to this particular object. जहां पर values है ID, name, age. ये कुछ values है. Right? Now after that, I call the method called as set ID using student reference. उसको input दिया 1. नाउ यहाँ पर कंट्रोल आ गया. दिस इज अ मेथड कॉल. ये मेथड डेफिनेशन. यहाँ पर कंट्रोल आ गया. यहाँ पर मैं दिस डॉट आईडी बोल रहा हूँ. सो इंट इनपुट ये क्या है? व्हाट इज दिस इंट इनपुट? दिस इज पैरामीटर. दिस इज आर्गुमेंट. ये आर्गुमेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी इनपुट में. अब ये वेरिएबल है. दिस इज अ लोकल वेरिएबल. ये लोकल वेरिएबल. और व्हाट अबाउट आईडी? इंस्टेंस वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. वी डोंट नीड एनी प्रीफिक्स और सफिक्स. इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं? यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल. अब इस केस में मुझे बताओ, सेट आईडी मेथड कॉल करने के लिए क्या यूज किया? रेफरेंस. अब जिस रेफरेंस के ऊपर आपने ये मेथड कॉल करी, उसी रेफरेंस को ये भी कॉल कर. दिस विल आल्सो रेफर. तो जहां पर स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, यहां पर भी ये पॉइंट वहां पर करेगा. So using that, we can access the current class instance variable, instance method, and constructor. So this is what we discussed. So this is a keyword, and this is available only non-static context. It is available in non-static context. It is not available in static method or static block. So can you tell me why this keyword is not applicable or not available inside the static method? Okay, static means something common, but why this is not there? Yes, Nehal. कौन? नॉन स्टैटिक मेथड में तो हमारे पास दिस है अवेलेबल. स्टैटिक मेथड में अवेलेबल नहीं है. तो वो क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन है. ओके अब मुझे बताओ, स्टैटिक मेथड कोई कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा? क्लास नेम से. परफेक्ट. ये तो क्लियर है. और लेट्स थिंक ऑफ दिस इज दिस इज अ स्टैटिक मेथड. इस पर्टिकुलर मेथड को क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो, राइट? तो दिस इज गारंटेड. दिस गारंटेड कि आप क्लास नेम से उसे एक्सेस कर सकते हो. तो दिस कैसे मिलेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाए नहीं होगा. अगर ये मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नो, वी डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दिस पर्टिकुलर मेथड जो आपकी ये वाली मेथड है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है कि कॉल करने के लिए? नो. तो आपको पता है कि इसको क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो. तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो वो रेफरेंस कहां पर मिलेगा? रेफरेंस नहीं मिलेगा तो ये दिस कैसे पॉइंट करेगा? सो दिस विल नॉट पॉइंट एनीवेयर. सो दिस इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द स्टैटिक मेथड. और इंस्टेंस में ये क्लियर है. क्यों क्यों क्लियर है ये? क्योंकि आपको पता है कि M1 मेथड किस, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड. इसे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस का यूज करके आपको इस मेथड को कॉल करोगे. तो यहां पर दिस अवेलेबल है क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड को हमें पता है कि कैसे कॉल होगा, यूजिंग रेफरेंस. तो जिस रेफरेंस को ये कॉल के ही उसी रेफरेंस के पास ये भी रेफर करेगा. क्लियर? दिस वाज समथिंग वी डिस्कस. और ये कुछ सिनेरियोज मैंने आपको बताए थे कि इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करोगे अलग अलग जगह से. स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे अलग अलग जगह से. दिस वाज समथिंग वी डिस्कस. और सेम क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था. दिस वाज व्हाट वी डिस्कस. लास्ट की क्लास में ये भी डिस्कस किया था. So from where we can call the instance method, from where we can call the static method, and how does that happens? तो बहुत ही सिंपल सा था. So पहले तो how do you call instance method from another static method within the same class? तो static method से है.
तो वहां पर दिस कीवर्ड तो नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे कॉल करना पड़ेगा? यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। एक इंस्टेंस मेथड से दूसरी इंस्टेंस मेथड, तो आपके पास दिस कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हो। दूसरे क्लास की स्टैटिक मेथड, रेफरेंस ये होगा आपको। दूसरे क्लास की इंस्टेंस मेथड, अब वहां पर दिस क्यों नहीं चलेगा, कोई बताएगा? इंस्टेंस इंस्टेंस है ना, क्लास डिफरेंस है, तो वो दूसरी क्लास की इंस्टेंस मेथड, वहां पर जो दिस होगा, सो दैट दिस विल पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर क्लास ऑब्जेक्ट, नॉट द कॉल्ड मेथड। नाउ स्टैटिक मेथड विद इन द सेम क्लास, from one static method to another static method, क्लास नेम से कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, या रेफरेंस से भी कर सकते हो। डायरेक्टली क्यों कर सकते हो? बिकॉज वी आर इन द सेम क्लास। रेफरेंस से भी कर सकते हो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बट व्हाट इज द बेस्ट रिकमेंडेड वे? ऑलवेज यूज द क्लास नेम। इंस्टेंस मेथड से कॉल कर रहे हो सेम क्लास की, तो आपके पास पहला ऑप्शन है क्लास नेम से, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली, तीसरा ऑप्शन है रेफरेंस। वहां पर रेफरेंस क्या है? दिस। दूसरे क्लास की बात हो रही है, दूसरे क्लास में क्या है? पहला ऑप्शन तो क्लास नेम से, दूसरा ऑप्शन रेफरेंस है, यहां पर भी सेम चीज। तो इस तरीके से हमने ये कैसे कॉल करते हैं इसका डेमो भी देखा था, और फिर ये वाला पैकेज टेक ये मल्टीपल क्लासेस में कैसे एक्सेस करती है ये आपको बताया था। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस आफ्टर गोइंग होम, ये स्ट्रक्चर? ओनली वन, टू? कितने लोगों ने ट्राई किया? डिड यू ट्राई? ओके, बाकी लोग इंप्लीमेंट किया? पुष्कर, अयान, but did you try implementing this? Okay, fine. So this was the second component that we discussed. Now there are more components are there, so we'll try to cover that component. So today there is another component called as constructor. So can anyone tell me how do we actually create an object using new keyword? What is the syntax? So object using new keyword. And can anyone explain me this? So what is the way? What is the syntax? So we write something called as class name, reference, class name. Okay. So can you tell me this, what this particular, where is object in this case? ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट, इसमें ये कीवर्ड है, और व्हाट इज दिस? व्हाट अबाउट दिस? दिस इज योर कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर कॉल। नाउ वेरी सिंपल, ये राइट हैंड साइड जो दिखाई दे रहा है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये वाला आपका कीवर्ड, और ये आपका इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कॉल। राइट, नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व वन थिंग, हम मेथड कैसे कॉल करते हैं? डू यू रिमेंबर सिंटैक्स? डू यू रिमेंबर सिंटैक्स? रेफरेंस और क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और लास्ट में सेमीकोलन, ऐसे ही कुछ कॉल करते हो आप? यस और नो? दिस द वे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर इज? आप यहां पर बोल रहे हो कि आई एम कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल. So why we are calling it? So there is something constructor. So what we need to understand what exactly constructor is. So what is a constructor?
What is the constructor? Why do we need that? We need to understand that. So what is the constructor? Yes. Hmm. ओके, तो जैसे आपने मेथड कॉल किया, दिस इज लिटिल सिमिलर टू दैट ओनली, बस पहले कुछ लिखा नहीं प्रीफिक्स, एक तो क्लास नेम या रेफरेंस नहीं लिखा, बट यहाँ पर मेथड कॉल जैसे ही कुछ सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, राइट? नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सो इट इज आल्सो अ मेथड। अब ये जो आपने किया कंस्ट्रक्टर कॉल है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मतलब कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन भी होगा कहीं ना कहीं, राइट? सो कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ मेथड, कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ मेथड। So constructor is also a method, but it has, but there are some rules. It is also a method which has same name as of class name. क्या है पहला? Constructor is also a method, but there is something that you have to be worried about or that you have to remember. So which has a same name as of your class name. जो class का नाम है वही आपका method का नाम होगा. No return type. No return type, even void. कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अगर आपने रिटर्न टाइप लिख दिया दैट इज अ नॉर्मल मेथड। अगर आपने क्लास का नाम भी लिखा बट मेथड को रिटर्न टाइप दे दिया दैट इज अ नॉर्मल मेथड, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है? व्हाट इज मैंडेटरी? क्लास का नाम सेम होना चाहिए, क्लास का और मेथड का नाम सेम होना चाहिए, और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, इवन वॉइड, इवन वॉइड। देन उसके बाद है दूसरा, नो मॉडिफायर, नो मॉडिफायर्स, नो एक्सेस मॉडिफायर्स। such as static, final, abstract एंड सो ऑन। ऐसे कोई आप ये मॉडिफायर नहीं लगा सकते। लेट्स सी अ सिंटैक्स, or maybe example we can directly say that, let's say I have class student, this is a class. Now I want to create a constructor inside this, so how do I create? So it has certain fields as well, int id, string name। तो पहले तो देख के आप पता कर सकते कि ये क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि कोड देख के आपको प्रोग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि इज इट अ वेरिएबल, इज इट अ मेथड, इज इट अ कंस्ट्रक्टर, इज इट अ ब्लॉक, व्हाट इट इज। तो वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ कंस्ट्रक्टर नाउ, राइट? अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, सो व्हाट आई सेड अबाउट कंस्ट्रक्टर, इट इज अ मेथड। तो मेथड है मतलब तो बॉडी होगा यहाँ पर ऐसे कुछ, उसका कुछ नाम पैरामीटर्स होगा, उसका कुछ नाम होगा, राइट? सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। अब ये कोई इनपुट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही कुछ आउटपुट दे रहा है। आई एम राइटिंग अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। और यहां पर int id string name, can you tell me what is the category of variables that I have put here? ये लोकल वेरिएबल है, जैसे मेथड में आप लिख रहे थे वैसे ही लोकल वेरिएबल है ना। मुझे करना क्या है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है इंस्टेंस वेरिएबल को। सो हाउ डू आई डू दैट? अब हमारे केस में क्या प्रॉब्लम है, आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम है, सो देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ कंफ्यूजन। इफ आई राइट id equal to id, if I write id equal to id, name equal to name, so what is happening, we are assigning local variable value to no, लोकल वेरिएबल वैल्यू लोकल को असाइन हो रही है, क्यों? इंस्टेंस वेरिएबल का भी सेम नेम है, इसका भी सेम नेम है, सो देयर इज अ कंफ्यूजन। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस कंफ्यूजन?
तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है इंस्टेंस। तो यहाँ पर लिखोगे दिस डॉट, क्या लिखोगे, दिस डॉट, here also we have to write this dot, ठीक। So this is your constructor, this is also constructor, this is also constructor. So I can write multiple constructors, that is perfectly fine. Now this is a constructor, can you see here one thing, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, यहां पर भी सेम ही है, कोई रिटर्न टाइप है, नो, कोई मॉडिफायर है, नहीं है। सो ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया आपका। कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है कि is there any parameters? No, so that's why it is called as zero param constructor। ये कैसा है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर पैरामीटर्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आर वी एक्सेप्टिंग द पैरामीटर्स? यस, ये दो पैरामीटर्स आईडी एंड नेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट वी call it as parameterized constructor। कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट्स द पैरामीटर, इट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड। और कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता उसे हम जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देख के तो समझ में आ रहा है कि हाँ कंस्ट्रक्टर ऐसे ऐसे दिखता है। What exactly constructor is? Constructor is a special method which has same name as of class name, no return type, no access modifier। Perfect, ये समझ में आ गया आपको। This is something, this is how a constructor look like। Now next question is why we have to write this? Why we have to write this? So what is the use of constructor? Why we have to write this? अभी तक तो हमने नहीं लिखा था, बट यहाँ पर मैंने लिखा है। Why we are writing this? अरे बोलो फटाफट, एक लाइन में बोल सकते हो आप। टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, or to create an object, or to initialize an object. So why we are using constructor? So why to use constructor? आप ये भी बोल सकते हो to create an object, create an object, or to initialize an ऑब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर वैल्यू सेट करना। सो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन मींस सेटिंग द वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन मींस setting the values for instance variable। क्या है, why we are using constructor? हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्ट क्रिएशन? मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। अब मेमोरी कब एलोकेट होगा? जब कोई डेटा रखोगे तभी। तो वो डेटा रखने का काम कौन कर सकता है? ऐसे बोल सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आपके सामने दो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, एक पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता है और दूसरा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? तो पैरामीटर्स नहीं एक्सेप्ट करता, वो पैरामीटर नहीं दे सकते, इसको पैरामीटर दे सकते हैं। अब पैरामीटर दे सकते, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना सकते जो हम वैल्यू चाहते उस वैल्यू के साथ,
सो यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद एक्चुअल वैल्यूज। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, यस ऑब्जेक्ट बनेगा, बट डिफॉल्ट वैल्यू इसका वैल्यू रहेगा आईडी इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू नल रहेगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो। इफ यू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, हाउ डू यू कॉल द, ये कंस्ट्रक्टर आप ऐसे कॉल करोगे, न्यू स्टूडेंट, ऐसे कॉल करोगे ना। अब इस केस में ऑब्जेक्ट तो बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज क्या रहेगी, आईडी इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू नल, ये रहेगा। अब यहां पर मैं अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं, कंस्ट्रक्टर में इसका अलग तरीके से कॉल करूंगा। सो न्यू स्टूडेंट, और यहां पर वैल्यू दे रहा है मैं लेट से 1 एबीसी, तो वैल्यू पास कर दिया मैंने यहां पर। इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बनेगा, बट वैल्यूज उसकी आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू एबीसी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है अभी, हाउ वी आर एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग दैट पैरामीटराइज वन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑब्जेक्ट बनेगा जो वैल्यू दोगे उसके साथ। सो कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अगर जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसको अभी अभी इस केस में 0 नल मिल रहा है, राइट। पैरामीटराइज में क्या हो रहा है, हर बार कंस्ट्रक्टर नए वैल्यू के साथ आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब वैल्यू पास कर रहे हो, यू आर पासिंग द वैल्यू, यू आर पासिंग द वैल्यू एज आर्गुमेंट, यहां पर एज आर्गुमेंट अपने वैल्यू पास करी है, और इस वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनेगा इस तरीके से, आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू एबीसी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। नाउ टेल मी, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कब यूज करोगे, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, कैसा कंस्ट्रक्टर, जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इसका यूज क्यों करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद एक्चुअल वैल्यूज प्रोवाइडेड, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बट नॉट विद डमी वैल्यूज, विद एक्चुअल डेटा, देन गो विद द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अगर आप चाहते कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करे विद डमी वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज, देन गो विद द जीरो पैरामीटर्स। और देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज देयर, हमने अभी तक क्लासेस बनाए लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। अभी तक हमने क्लासेस तो बनाए, इसके पहले आज की क्लास से पहले बहुत सारे हमने क्लासेस लिखे, लेकिन उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। तो अगर एज ए डेवलपर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं, देन जावा प्रोवाइड्स वन कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर एज ए डेवलपर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो, देन जावा प्रोवाइड्स वन कंस्ट्रक्टर विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई भी वैल्यू इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर वैल्यूज रहेगी डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट। जो भी जीरो नल जो भी है वो डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगा। अब आप बोलोगे कि जीरो पैरामीटराइज भी है और डिफॉल्ट भी है, तो दोनों में क्या अंतर है। अब चेंज नहीं कर सकते आप, डिफॉल्ट वैल्यू ही मिलेगा आपको, लेकिन जीरो पैरामीटराइज में एक ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कुछ डमी वैल्यू लिखना है, आप अलग चाहते हो, आप इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हो, जो भी इंस्टेड ऑफ जीरो नल आप चाहते हो कि दूसरी कुछ वैल्यू दो, डमी ही वैल्यू है, दैट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। इज इट एक्चुअल वैल्यू, नो। अगेन आप जीरो नल नहीं चाहते हो, दूसरी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू चाहते हो यहां पर, डमी वैल्यू, तो गो विद द zero parameterized constructor. Let's give a write up and we'll talk the dynamic ID. So what are the different types of constructors are here? So we have default constructor, we have zero parameters constructor, then we have parameterized constructor,
सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब मिलता है आपको? इफ नो कंस्ट्रक्टर is provided by developer, then only you will get this. क्या बोल रहा हूँ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब मिलता है? If no constructor is provided by developer, then Java provides no constructor is provided by developer, then Java provides default constructor. And very important, default constructor कोई input accept नहीं करता. So default constructor does not accept any input. ठीक, क्या बोला मैंने? अगर डेवलपर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देता है तब आपको मिलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये कोई इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है. कब यूज करना चाहिए? व्हेन वी शुड बी यूजिंग दिस. सो इफ यू वांट एन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड with default values, right? Let's see a simple example. We'll take the same example here itself. Now, can you tell me which constructor we are calling? This is a constructor call, right? Is this constructor call? Yes. तो इस केस में हम कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं? So in this case, हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है क्या आपकी क्लास के अंदर? There is no constructor at all. Then there is a call to default constructor. इसे कॉल कर रहे हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट जो बनेगा, हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट, जो एस रेफरेंस करेगा उसके अंदर क्या वैल्यूज रहेगी? आईडी विल बी 0, नेम विल बी null. So this is a default constructor. Make sense? Are you able to make sense this? So it is provided by developer without and does not accept any input and does not accept any input. कोई input accept कर रहा है क्या यहाँ पर? And some dummy default values and some dummy default values. Then go with this. This is your अब इस केस में हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? सो वी आर कॉलिंग, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? जीरो पैरम. इसे हम नो आर्गुमेंट भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल इट एज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. या शॉर्ट फॉर्म में हम उसे नो आर्क्स भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल इट एज नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर. इस केस में भी ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? विद डिफॉल्ट वैल्यूज 0, नल. बट आपके पास ऑप्शन है. अगर मैं यहां पर लिखूं आईडी इक्वल टू मुझे चाहिए 1,
and name is equal to XYZ. तो इस केस में मेरे जो भी सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे हैव द वैल्यू एज 1 and XYZ. Instead of zero null, everyone will have this particular thing. Clear? Easy? Make sense? Now what? Parameters constructor. It is provided by developer and accepts input. Accepts input also. So if you want an object to be created with actual values, then go with this. अब इस केस में यहां पर मैं लिखने वाला हूं दिस पर्टिकुलर थिंग. यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कंस्ट्रक्टर, बट so this is my parameters constructor. This is my parameters constructor. आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो एक क्लास के अंदर. यहां पर कुछ वैल्यू जो भी दोगे आप, ठीक. So this is nothing but your which constructor call? Parameters constructor. This is a parameters constructor. Simple. So let's go to the ID. Now let's see carefully here. I'm writing everything inside the main method only so that for understanding purpose. So I'm writing a class student int ID string name. Now in this case, so which constructor we are calling? So this is a call to the डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पर भी आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया इसलिए ये वाला. और ये दोनों भी कहां पर पॉइंट करेंगे? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को. सो दिस विल पॉइंट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच विल हैव द वैल्यूज. क्या रहेगा? आईडी इक्वल टू 0 एंड नेम इक्वल टू नल. दिस इज समथिंग विल हैपन सिमिलर विद द S2. तो जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सबका यही ऐसे ही कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज मिलेगा. If I print this as well, you will get the similar output. Check, I'm printing this. क्लियर? तो आपने कॉल किया कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. परफेक्ट. आई एम कॉलिंग
or I'm defining a constructor. So this is your zero param, zero parameterize. This is zero parameterize constructor. अब बाई डिफॉल्ट इसकी भी वैल्यू कैसे जाएगी, कुछ यही रहेगी आपकी, ठीक है, जीरो नल ही रहेगी अभी भी, कुछ आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं, अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू ही है दोनों के टाइम। देखो एक बार जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यस दैट्स प्रिंटिंग। अब आपके पास ऑप्शन है कि आईडी इक्वल टू 1 और नेम इक्वल टू एबीसी, ये डिफॉल्ट वैल्यू। इंस्टेड ऑफ जीरो नल नाउ वी आर गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू एज 1 एंड एबीसी फॉर एवरीवन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बने यूजिंग दिस, एवरीवन विल हैव दिस वैल्यू 1 एंड एबीसी, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, हम डिफॉल्ट ही रखेंगे उसको, ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक। नाउ व्हाट इज अ गुड ऑप्शन, now I'm going to write a constructor which will be parameterized now. So I will accept int id name and this is my parameters constructor, और यहां पर हम क्या करेंगे, हार्ड कोड वैल्यू नहीं देंगे। so this dot id equal to id, और यहां पर भी this dot name equal to name. Now what is happening, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है। सो एक ही कंस्ट्रक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर कंस्ट्रक्टर इन दिस केस, एक ही कंस्ट्रक्टर आपके पास, और वो पैरामीटर्स। ऐसा है कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर दिया तो आपको जीरो पैरामीटर भी मिलेगा, नहीं यहाँ पर तो नहीं दिया आपने, आप लिख सकते हो बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैंडेटरी वैल्यू देना है अभी, वी हैव टू गिव द वैल्यू मैंडेटरी। This is one of the concept you need to understand while in the Spring also I'm going to ask this simple question. This ये मेथड है ना, दिस अ मेथड राइट, किधर, ये वाला, ये कौन सा टाइप का है वेरिएबल, लोकल, ये कौन से टाइप का है, स्टैटिक, किधर स्टैटिक है, किधर स्टैटिक है, किधर वो मेथड, अरे मेथड को छोड़ दो, क्लास देखो, इंस्टेंस है राइट। अब मुझे बताओ यहां पर मैं दिस हटा दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है यहां पर, लोकल की वैल्यू, लोकल को असाइन कर रहे हो, यू आर असाइनिंग लोकल वैल्यू, लोकल वेरिएबल वैल्यू टू लोकल वेरिएबल, सो देयर इज नथिंग यूज, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा नहीं, सो वी आर असाइनिंग local to local. This is not something we are looking. So what we are looking? Assigning local to instance. अब दोनों का नाम सेम है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, this dot id equal to id, this dot name equal to name, इसलिए this यूज किया, समझे। अब यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, एक ही कंस्ट्रक्टर है तो वैल्यू देना मैंडेटरी अभी, राइट। नाउ देयर इज अनदर स्टूडेंट, अब इस केस में दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, सो पैरामीटर्स कंसेप्ट हम यूज क्यों करते हैं, इफ यू वांट टू create object with actual values,
वाई समझना ट्राई करो, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वहां पर वाई पूछो, ट्राई टू आस्क वाई। ठीक। देयर इज वन मोर कंस्ट्रक्टर टाइप यू कैन, एक्चुअली ये सिमिलर ही है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं उसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना ये यूज करोगे आप आगे जाके। सो व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? अब कॉपी, कॉपी तो आपको पता ही होगा व्हाट इज अ कॉपी, जैसे आप एग्जाम में करते हो कॉपी। एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ नाम भी कॉपी कर रहे हैं, दैट इज अ कॉपी, राइट? कितने लोगों ने सच में कॉपी नहीं किया कॉलेज में कभी भी? कितने लोग ऐसे कॉपी नहीं किया कॉलेज में, स्कूल में कभी भी कॉपी नहीं किया? कॉलेज में नहीं, स्कूल में किया, ठीक है। सब नहीं किया। So we use copy constructor to create an object, to create an object using an existing object. क्या बोला मैंने? You want to create a new object but using existing object, right? Very simple. Let's do that. So I have this particular parameters constructor. Let me keep this as it is. Okay. So ये कौन सा कंस्ट्रक्टर आपका? This is your parameters constructor. You are assigning local to instance variable. ठीक है। Now this is a parameterized constructor. This is your parameterized constructor. Now I am creating now copy constructor. So copy constructor का काम क्या होता है? What is the job of copy constructor? Create an object using existing object. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट तो एक्सेप्ट भी तो करेगा। तो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं? सेम टाइप का। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, और क्या करेंगे हम? पहले भी यहां पर दिस डॉट आईडी कर रहे थे हम, यहां पर दिस डॉट आईडी क्या करेंगे? यहां पर एक एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे थे। थिंक ऑफ, क्या कर रहे हो आप? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो एक एक वैल्यू आप यहां पर सेट कर दे, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट मुझे बताओ, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर 100 फील्ड्स हैं। ऑलरेडी एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, तो मुझे दूसरा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से यही कॉल करना पड़ेगा, आई हैव टू पास द वैल्यूज आल्सो। बट मेरे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 100 वैल्यूज है, उसमें से थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो वो कॉपी करके करूंगा, ऑब्जेक्ट पूरा बनाऊंगा, और उसमें थोड़ा सा जो भी चेंज है दैट आई विल डू। मेक सेंस? आई एम राइटिंग अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक्सेप्ट एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज इनपुट, यूज दैट ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, यूज दैट ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, एंड अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं इस केस में। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके अंदर सारी वैल्यूज है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? दिस डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम। अब दोनों में क्या फर्क है? इसमें क्या कर रहे थे हम? इंस्टेंस वैल्यू वैल्यू यहां से एक एक रीड कर रहे थे और यहां पर सेट कर रहे थे। यहां पर भी तो वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सारी वैल्यूज अभी कहां पर है? इसके अंदर, उसमें से एक एक वैल्यू आप रीड करके यहां पर वैल्यू सेट कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस केस में मेरा S1 ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी रेडी, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी रेडी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट, मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक तो एक एक वैल्यू दो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है? S1। अब दोनों का क्या प्रिंट होगा? सेम ही प्रिंट होगा। बाद में चेंज कर सकते हो बट दैट्स फाइन नाउ। अब यहां से कंट्रोल गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ? S1 की जो वैल्यूज है वो यहाँ से एक एक रीड करके हम नए ऑब्जेक्ट में सेट कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट।
मेक सेंस? बहुत सिंपल है. समझे? पहले ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, राइट. अब यहां पर हमने क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहां पर, और नेक्स्ट टाइम ये वाला. समझे? व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर लुक लाइक? ऑब्जेक्ट तो बनाना है लेकिन पूरा स्क्रैच से नहीं. ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना है, उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तब हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर ये वाला. मेक सेंस? Yes, sir. यहां पर अपने एक और कंस्ट्रक्टर लिखता हूं. सो आई एम राइटिंग दिस वन कंस्ट्रक्टर आल्सो. तो आपका ये जीरो पैरामीटर्स, दिस इज योर जीरो पैरामीटर्स. अभी आपने सेम क्लास के अंदर कितने सारे कंस्ट्रक्टर लिखे हैं? 3 कंस्ट्रक्टर्स. आप जितने चाहिए उतने आप लिख सकते हो, बट दैट हैज टू बी, मतलब डुप्लीकेट नहीं कर सकते. यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं दिया, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अलग पैरामीटर दिया है. It, now there is this particular thing called as constructor overloading. अगर आपको कोई पूछे इंटरव्यू व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सॉरी क्या क्या, बोलो बोलो. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वेरी सिंपल. आपकी क्लास में आपने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखा है, उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो डिफाइनिंग multiple constructors in the given class, in the given class is called as constructor overloading. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आप भूल जाते हो इंटरव्यू में. कुछ डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं. सो अगर आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ठीक, ओवरलोड हो रहा है क्या आपको? नहीं, राइट, परफेक्ट. देयर इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग. कंस्ट्रक्टर चेनिंग. सो अभी के लिए इतना समझो. So calling one constructor from another constructor of the same class or superclass is called as constructor chaining. देखते हैं इसको. So to do this, to call same class constructor, we use this. ठीक है. To call super class constructor we use super. ये बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस ये देखो. ठीक, कुछ रूल्स है. Call to the constructor must be the
first line in the given constructor, in the given constructor. क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है? एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आप यूज करोगे दिस, सुपर क्लास का कॉल करने के लिए यूज करोगे आप सुपर। ये आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट लाइन इन द given constructor, otherwise you will get compile time error, otherwise compile time error। अब इस लाइन की मदद से आप मुझे बता सकते हो एक कंस्ट्रक्टर से कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं? From a given constructor, how many constructors we can call? वन। क्यों? फर्स्ट लाइन चाहिए, तो दूसरा लिखा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। सो दैट मेक्स सेंस, राइट? सो वी कैन कॉल मैक्सिमम ओनली वन कंस्ट्रक्टर from the given constructor, from the given constructor। ठीक। देयर इज वन गोल्डन लाइन आई एम राइटिंग, बाद में आप उसको समझने वाले, बट अभी के लिए समझो क्या कंस्ट्रक्टर चेनिंग, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जैसे एक मेथड से दूसरी मेथड कॉल कर सकते हो, हमने देखा है बहुत सारे अलग अलग, तो कंस्ट्रक्टर भी आप कॉल कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अब कंस्ट्रक्टर कॉल करना है सेम क्लास का, तो क्या यूज करोगे आप? दिस। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर। और कंस्ट्रक्टर कितने कॉल कर सकते हो? मैक्सिमम ओनली वन। और जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो वो कौन सी लाइन होनी चाहिए? फर्स्ट लाइन। इफ दैट इज सेकेंड लाइन, यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक। नाउ देयर इज वन मोर कंक्लूजन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे इस लाइन के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर में कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टर लिखा है आपने, ठीक, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करने का कोई लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा है कि वहां पर मतलब कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, सॉरी कंस्ट्रक्टर चेनिंग? एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना। आप पैरामीटराइज से जीरो पैरामीटर्स कॉल कर सकते हो या जीरो पैरामीटराइज से पैरामीटराइज, राइट? लेट्स से मैं अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से यहां पर कॉल कर रहा हूं दिस, सो दिस इज अ कॉल टू द जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये मैंने एक्सक्लूसिवली लिखा है, यहां पर मैंने एक्सक्लूसिव लिखा है। बट अगर ये लाइन नहीं होती है, इफ दिस नो लाइन लाइक दिस, even though you do not see any line, there is one invisible line is always there in any constructor, in any constructor. So what is that line? If there is no constructor call explicitly in the constructor, then there will be call to the super class। अब ये बाद में हम और भी डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए क्या समझो, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं दिख रहा है एक्सप्लिसिटली, तो देयर इज ऑलवेज अ इनविजिबल लाइन। व्हाट इज दैट इनविजिबल लाइन? कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ऐसे कुछ लाइन दिखेगी आपको, इनविजिबल होती है, इवन दो यू डू नॉट राइट, दिस लाइन इज ऑलरेडी देयर। दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका है, मेथड कौन सा है हमारा? कंस्ट्रक्टर।
अब उसको उसके नाम से तो नहीं कर सकते वैसे, तो इसके लिए यहाँ पर वो स्पेशल है, इसलिए उसको स्पेशल तरीके से भी कॉल हो रहा है। वो वैसे ही कॉल करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस। समझे? सो लेट्स सी दिस वन एग्जांपल। So what is constructor chaining, guys? Let me remove this. What is constructor chaining? एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर, और यहां से क्या कर रहा हूं मैं, आई एम कॉलिंग, ठीक। देखो यहां पर, लेट्स लुक एट द सिंपल एग्जांपल। अब मैंने कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया, यहां से पैरामीटर्स कौन सा कॉल किया, पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल जाएगा आपका पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर आ गया यहां पर, कॉल किया तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे कॉल आया, और यहां पर रुक गया वो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपने मेन मेथड से कॉल किया ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, अब पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर से आप कॉल कर रहे हो जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। नाउ वी आर इनसाइड द जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। मेन मेथड से पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर से जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होगा, देन कंट्रोल विल गो बैक टू अगेन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब ये वैल्यू सेट हो गई, अब ये प्रिंट होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। समझे? अगर ये लाइन में सेकंड पे लिखता हूं, इफ आई राइट द सेकंड लाइन, दिस वन, you'll get compile time error, right? So call to the constructor, there has to be first line. अब यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन there is already one line visible. So this is added by default, even though you do not write. अब इसका कोई सुपर है नहीं अभी के लिए, डायरेक्ट, क्लियर? So constructor chaining, constructor overloading, are we able to make sense? Yes, sir. मल्टीपल कौन सा, अब यहां पर मैं कॉल कर रहा हूं, हाँ, सो लेट मी कमेंट आउट दिस। आप बोल लो कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा किसका, जीरो पैरामीटराइज, राइट। अब मैंने कॉल किया जीरो पैरामीटराइज, और यहां से मुझे कॉल करना है पैरामीटराइज, सो आई कैन डू दैट दिस, बट यहां पर पैरामीटर देना पड़ेगा मुझे। सो पैरामीटर से जीरो पैरामीटराइज, पैरामीटर जीरो पैरामीटर से पैरामीटराइज, लाइक दिस। समझे? तो इस केस में आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, पैरामीटर्स, तो पैरामीटर के लिए तो पैरामीटर्स कॉल करते हो, पैरामीटर देना भी मैंडेटरी है। अब यहाँ पर जीरो पैरामीटर्स है, तो यहाँ पर पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं। दो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये क्या सेट करता है, बस आईडी, ये क्या करता है, आईडी। तो दिस इज वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब मुझे ये कॉल करना है, तो कहां से कॉल करना है आपको, यहां से। तो आपके पास ऑप्शन है, एक ही पैरामीटर देना पड़ेगा बस।
सिंपल। चलो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है ना, क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखना, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखना। लेकिन कैसे, डुप्लीकेट या अलग? अलग। तो क्या अलग होना चाहिए? नाम तो सबका सेम है, डेटा टाइप रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो क्या चेंज होना चाहिए? पैरामीटर। पैरामीटर। क्या चेंज होना चाहिए? नाम तो सबका सेम ही होगा, फिर उनका रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो क्या चेंज होगा? बस पैरामीटर्स। सो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स शुड डिफर। उसमें क्या होना चाहिए डिफर में? एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स अब मेरे पास यहां पर क्या क्या चेंज है? तो यहां पर तो 0 पैरामीटर है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर बढ़ गए, दैट इज परफेक्टली फाइन। और ये 1 पैरामीटर है, 2 पैरामीटर, सो आई हैव 3 कंस्ट्रक्टर्स, वन इज विद 0 पैरामीटर, वन इज विद 1 पैरामीटर, वन इज विद 2 पैरामीटर्स। तो ओवरलोडिंग करो, लेकिन क्या चेंज होना चाहिए? पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर आइदर चेंज होना चाहिए या टाइप ऑफ पैरामीटर शुड चेंज। क्या बोला मैंने? जब आप ओवरलोडिंग कर रहे हो तो क्या चेंज करना है? एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर। ठीक। नाउ ऑन द सिमिलर लाइन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज method overloading. But we have method overloading. So what is method overloading? जैसे कंस्ट्रक्टर आपने ओवरलोड किया, similarly we have method overloading as well. So what is method overloading? अरे आपने अभी मेथड ही तो ओवरलोड किया है, कंस्ट्रक्टर है तो क्या हुआ? But that is also a method. So simply it is a process of defining multiple methods in the same class और सब क्लास। बात करेंगे हम इसकी with the same name। क्या है? what is method overloading? आप मल्टीपल मेथड डिफाइन करोगे इन द सेम क्लास और सब क्लास विद द सेम नेम, सेम क्या होना चाहिए? पहले तो नाम सेम होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या चेंज होना चाहिए फिर? आइदर नंबर ऑफ, अब कंस्ट्रक्टर का भी नाम ही सेम ही है, आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ शुड डिफर। क्या चेंज होना चाहिए? नाम तो सेम ही रहेगा, जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, राइट? तो वैसे हम भी क्या करेंगे? मल्टीपल मेथड डिफाइन करेंगे विद द सेम नेम इन द सेम क्लास और सब क्लास। बट क्या चेंज होना चाहिए? आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर शुड चेंज। ठीक। अब यहां पर बहुत सारा एंट्री क्वेश्चन आता है कि हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या, प्राइवेट मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या, फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या? तो इसका सिंपल आंसर है वी कैन ओवरलोड मेन मेथड, स्टैटिक मेथड, फाइनल मेथड। अभी बाद में आप पढ़ोगे फाइनल क्या होता है, प्राइवेट मेथड आप ओवरलोड कर सकते हो।
So let's see this in action. So यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स. स्टैटिक मेथड इंट ऐड. अब ये एडिशन करती है नंबर 1, नंबर 2. ठीक. आई एम गोइंग टू राइट another method which does the addition of 3 numbers. ठीक. तो मेरा एरर चला गया. Now I'm writing another method, but this time I'm going to do float. यहाँ पर 2 इंटीजर्स लिया, यहाँ पर 2 फ्लोट लिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. यहाँ पर ये 3. सो दिस इज सिंपली एडिशन. तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर एक्सेप्ट किए. अब यहाँ पर मैंने 3 नंबर एक्सेप्ट किए और यहाँ पर मैंने F. So this is simply my method overloading. समझे what is method overloading? सर बोलो. इथं सिक्वेन्स ऑफ पॅरामीटर चेंज करू शकतो का? म्हणजे कैसे? म्हणजे पॅरामीटरचा नंबर सेम राहील, फक्त सिक्वेन्स चेंज होईल असं. इसको नंबर 2 किया और इसको नंबर 1 ऐसे. हाँ. अरे टाइप चेंज हुआ क्या? नहीं. नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, टाइप चेंज हुआ नहीं. नाम तुमको जो चाहिए वो दे दो, डजेंट मैटर. ये नाम तो तुमने दिया ना, लेकिन हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम ही है, टाइप चेंज हुआ क्या? तो ये नहीं चलेगा. इजी? एनी क्वेश्चंस? हाँ, मेन मेथड अभी देखो आप. मेन मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कैन यू टेल मी? अब सेम लिखा तो क्या प्रॉब्लम है? नाम सेम है, टाइप सेम ही है. तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एरे आई एम एक्सेप्टिंग ओनली सिंगल. लेकिन मेन मेथड कौन सा कॉल होगा? ये वाला. अब इसे हमें कॉल करना पड़ेगा. तो आप बोल सकते हो ओवरलोडेड मेन मेथड. आप इसे कॉल कर सकते हो. अगर इनपुट नहीं देना है तो वो भी कर सकते हो. हटा दिया मेन. ये कॉल करना पड़ेगा. सो दिस मेथड जो आपने लिखी है इसको आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा. इसको कॉल नहीं करेगा जावा. कॉल किसे करेगा? जो एग्जैक्ट सिग्नेचर मैच होता है उसी. सिंपल.
अच्छा है टाइम पर. Yes, any questions? If no questions, I can ask you then some questions. ठीक है. वो हंस रहा है तुम पे. हाँ पुष्कर. So are we good with this keyword as well, right? We are good with this keyword as well. Chalo, we can start with the next component, that is block. Shall we start with the blocks? Are we good with the constructor? So we have blocks. This is an, I think, fourth component we have. अब आपको तीनों का भी पता है कि वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए, मेथड्स कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए, और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है. नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक्स. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स. वन इज इंस्टेंस ब्लॉक and another is static block. ठीक, let's try to understand this. So why we need instance block, static block? We'll talk about this. अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज हो रहा है अभी, कंस्ट्रक्टर, राइट. आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो. यू कैन राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट. अब उसमें से कोई भी कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट. नाउ अब मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड, इंस्टेंस ब्लॉक है नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड, स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक. अब आपने मेथड के अंदर भी लॉजिक लिखा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लॉजिक लिखा था, बट नाउ आई वांट टू राइट सम लॉजिक और सम काइंड ऑफ पीस ऑफ कोड that I want every time to be executed, right? So what's the first question? What is the instance block? तो block of code जो लिखते हो आप, so block of code कहां पर लिख रहे हो आप? Defined outside of all methods, constructors, but inside the class, without static keyword, without क्या है इंस्टेंस ब्लॉक, कैसे दिखता है? दिस इज हाउ वी विल राइट दैट आल्सो, दैट्स परफेक्टली फाइन. एक क्लास के अंदर आप लिख सकते हो. सो वी हैव अ क्लास, वी हैव क्लास नेम, एंड इनसाइड दैट वी राइट दिस ब्लॉक ऑफ कोड. सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंस ब्लॉक. ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक. ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक. सो व्हाट इज इंस्टेंस ब्लॉक? अ ब्लॉक ऑफ कोड outside of all methods constructor but inside the class without static keyword. उसको कोई नाम नहीं है, nothing. अब ये कब चलेगा? When this will run? ये कब चलेगा? When it will execute. ठीक है. ठीक है, आपने लिखा है लॉजिक, इसको देख के आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ दिस इज अ इंस्टेंस ब्लॉक. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कब चलेगा, राइट. कोड देख के आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि व्हाट इज दिस, इज इट अ मेथड, कंस्ट्रक्टर, व्हाट इट इज. सो दिस इज अ इंस्टेंस ब्लॉक. आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि सारे मेथड के बाहर है, कंस्ट्रक्टर के बाहर है, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड. दिस इज अ इंस्टेंस ब्लॉक. अब ये चलेगा कब? तो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, लेट्स से मैंने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, so this particular block of code will execute 10 times,
राइट. सो एवरी टाइम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो आपका 10 बार ये लॉजिक चलेगा. ठीक. अब आप बोलोगे ये इसमें क्या लिखना है. सो व्हाई टू यूज. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई भी किया कि ये ऐसा ऐसा है, कुछ देख के समझ में आया कि ये ब्लॉक है, इंस्टेंस ब्लॉक है. अब ये चलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट जितनी बार एग्जीक्यूट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज करो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बट ये चलेगा. कितनी बार चलेगा. अगर आपने 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो 100 टाइम्स नहीं चलेगा. तो आप बोलोगे इसके अंदर क्या लॉजिक लिखना है, क्यों लिखना है ये, वाई वी हैव टू यूज दिस. अगर नहीं लिखा तो चलेगा क्या. और इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ऑलवेज यू आर गोइंग टू यूज दिस. इट इज नॉट मैंडेटरी. अब कब यूज करना है आपको, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको एक ट्रैक रखना है. क्या ट्रैक रखना है कि मेरा इस पर्टिकुलर क्लास के लिए कितना ऑब्जेक्ट्स बन गया, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. आई वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. कितना ऑब्जेक्ट्स बन गए इसका मुझे ट्रैक रखना है. या मुझे कुछ ऑडिट के लिए रखना है कि ये इस टाइम पे लेट से ऑर्डर प्लेस हो गया, कौन से टाइम पे ऑर्डर क्रिएट हुआ, कौन से टाइम पे ऑर्डर प्लेस हो गया, इसका मुझे पूरा ऑडिट इंफॉर्मेशन रखना है. देन सच थिंग यू कैन राइट इनसाइड दिस. राइट. तो क्या लिखना है आपको, टू एग्जीक्यूट लॉजिक विच इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. जैसे मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करना है आपको इसमें, मेंटेनिंग कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए. सो मेंटेनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन काउंट, ये मेंटेन करना है आपको. कब यूज करना है आपको, वाई वी आर यूजिंग दिस, टू एग्जीक्यूट लॉजिक विच इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. जैसा ऑब्जेक्ट कितना बन गया इसका काउंट मुझे मेंटेन रखना है. या ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ, एट व्हाट टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो उसका आपको टाइम स्टैम्प चाहिए. आपको लॉग्स मेंटेन करना है, ऑडिट कुछ मेंटेन करना है आपको. ये चीज के लिए आप यूज कर सकते हो इंस्टेंस ब्लॉक, कि कौन से टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. एग्जाम्पल, जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट. ऑर्डर प्लेस करना मतलब क्या करना, ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, राइट. तो आपको ये पता करना है कि मेरा ऑर्डर कब प्लेस हुआ था. तो ये बिहाइंड द सीन ऑडिट होता होगा. इसको ऐसे सिंपल ऑडिट कैसे समझ सकते हो, जैसे आप कोई लेट्स से मेक माई ट्रिप पे कोई फ्लाइट बुक कर रहे हो आप, राइट. सो फ्लाइट जैसे आप बुक किया तो आपको मतलब आपने सोर्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया होगा. ठीक. आपने लेट से पुणे से मुझे जाना था लेट से दिल्ली, तो आपकी फ्लाइट बुक हो गई पुणे टू बैंगलोर गलती से. आप बोल रहे हो कि आपका सिस्टम का फॉल्ट है, मुझे पैसे मेरा वापस दो, आपने ऐसे बोला. तो हाउ दे विल कम टू नो दैट कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो. बिकॉज देयर विल बी ऑडिट लॉग्स एवरी स्टेप. तो आपने जब फ्लाइट बुक किया, या बुक किया मतलब जब ऑर्डर क्रिएट हुआ, कौन से टाइम पर ऑर्डर क्रिएट हुआ, उस ऑर्डर में क्या सेलेक्ट किया था, कौन सा डेटा था, ये सारी चीजें उसमें मतलब हर एक स्टेप पे लॉग होती है. ऐसा नहीं कि इतना इजी नहीं कि आपने मतलब चल गया. सो टू मेंटेन सच ऑडिट्स, सच लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऑडिट पर्पस के लिए मेंटेन करते हैं, दैट वी कैन राइट इनसाइड दिस इंस्टेंस ब्लॉक. क्लियर है. इंस्टेंस ब्लॉक क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट वी राइट आउटसाइड मेथड्स कंस्ट्रक्टर विदाउट स्टैटिक कोड. कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ नहीं, कोई इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट्स इट, लाइक दिस. इसका कोई नाम नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं, एक्सेस स्पेसिफायर कुछ नहीं है. अब ये चलता कब है, जब जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार चलेगा. क्यों यूज करना ये, कुछ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉजिक, जैसे कोई कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका काउंट मुझे मेंटेन करना है, टाइम स्टैम्प मेंटेन करना है, कोई ऑडिट इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है. सच थिंग्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज इंस्टेंस ब्लॉक. मेक सेंस. कॉमन कैसे रहेगा,
हाँ हाँ, 100 बार, सेम 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 लॉजिक हर बार, राइट। अब एक्सेस, यहां पर एक और चीज है कि इंस्टेंस ब्लॉक को क्या क्या नहीं है। सो इंस्टेंस ब्लॉक डज नॉट हैव क्या, नेम, रिटर्न टाइप, इनपुट पैरामीटर्स एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। ये सब कुछ नहीं है, ठीक। नाउ just like this we'll try to understand for static block also. Now what is static block? Block of code defined outside of all methods constructor but inside the class with static keyword. तो यहां पर आप लिखोगे static keyword, ठीक। अब इंस्टेंस था तो हर बार चलेगा। अब क्या लगता है आपको, ये स्टैटिक हर बार चलेगा? इंस्टेंस वेरिएबल को कितने बार मेमोरी मिलता है? जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो वैसे static block is a block of code. So what is this? We know that ये कब चलेगा? When static block will be executed. Only once. Only once when class is loaded in the memory. So we'll talk about this class loading stuff. So only once when the class is loaded in the memory. एक ही बार चलेगा ये। So क्यों यूज करना है हमें? Why to use static block? वैसे यहां पर static block does not have name, return type, access specifier, have only static access modifier, nothing else. अब इसका यूज क्या है? आपको ये भी तो पता चल गया कि ये कब एग्जीक्यूट होता है, कितनी बार चलता है। अब इसके अंदर क्या लिखोगे? कौन सा लॉजिक लिखोगे जो वन टाइम है? वन टाइम लॉजिक। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, क्लास लोड हो गया आपका मेमोरी में, उस टाइम पे मुझे लेट से डेटाबेस को कनेक्ट करना है या कोई सर्वर को कनेक्ट करना है, ऐसा कोई लॉजिक आप लिखते हो इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक। कहां पर लिखोगे आप ये? स्टैटिक ब्लॉक। जो लॉजिक एक बार चलने वाला है, जिसे डेटाबेस को कनेक्ट करना, सर्वर को कनेक्ट करना, कोई फाइल लोड करना, फाइल रीड करना, ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है, दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। टू एग्जीक्यूट लॉजिक only once, such as loading drivers, connecting to database or server, and so many things are there. ऐसा लॉजिक आप चलाओगे इसके अंदर। मेक सेंस? अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैंने बोला कि क्लास लोड करना मेमोरी में, तो हम जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टफ। बट अभी के लिए यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास को मेमोरी में कैसे लोड करते हैं, राइट। सो हाउ टू लोड अ क्लास, सो हाउ टू लोड अ क्लास इन द मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंटरव्यूज में, हाउ टू लोड क्लास इन द मेमोरी। तो आप क्लास लोड करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, दैट यू नो व्हाट इज दैट। सो बाय क्रिएटिंग द क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो अपने आप क्लास मेमोरी में लोड होगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? हीप मेमोरी है। क्लास का स्ट्रक्चर क्लास और मेथड मेमोरी एरिया कहां पर स्टोर होता है? क्लास और मेथड मेमोरी। विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी। सो बाय क्रिएटिंग द क्लास ऑब्जेक्ट, class will be loaded in the memory. There is one more way.
So by using class dot for name method. तो ये क्या है, एक ऑलरेडी एक डिफाइंड मेथड है. So there is a class called as class. So there is a class called as class. जैसे हमारे हेलो वर्ल्ड क्लास है वैसे ही क्लास है उसका नाम है क्लास. उसके अंदर ये फॉर नेम मेथड है. So inside the class there is a static method called as for name. चलो, it's almost we are closed. So what we are trying to understand, blocks, right? Now carefully see this. I'm creating a class, let's say student. Inside that, I'm writing an instance block. This instance block, and I have this static block. Okay. Now I'm creating multiple objects of this particular class. So what do you think? What is the output? So instance block चलेगा 4 बार और static block चलेगा 1 बार. So static block सबसे पहले execute हो, उसके बाद instance block. So this is the output you will get. Now there is one important question you have to worry about कि पहले कौन चलेगा. क्लियर यहां तक? इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कितनी बार चलता है. इंस्टेंस ब्लॉक विदाउट स्टैटिक कीवर्ड लिखते हो, स्टैटिक ब्लॉक विद स्टैटिक कीवर्ड. इंस्टेंस ब्लॉक हर बार चलेगा, जब तक आप जितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने बार इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा. स्टैटिक ब्लॉक बस एक बार चलेगा. कब चलेगा? जब क्लास लोड होगा तभी चलेगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. अब नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कि मेरे पास अभी कंस्ट्रक्टर है, इंस्टेंस ब्लॉक है और स्टैटिक ब्लॉक है. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? तो पहले क्या चलेगा, दूसरा क्या चलेगा? सो बिफोर दैट यहां पर क्लास कैसे लोड किया मैंने, बिफोर वी मूव देयर. अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट? बट देयर इज वन मोर वे. लेट्स से दिस स्टूडेंट क्लास इज देयर. ठीक. इनसाइड दैट आई एम राइटिंग अ सिंपल स्टैटिक ब्लॉक. तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने लिखा एक, ठीक. अब ये पर्टिकुलर क्लास का, इसके अंदर बहुत सारी चीज है, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ मेथड है एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? नाउ व्हाट आई वांट इज now I want you to execute student class static block. कैसे चलेगा? तो पहले पर आपके पास ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन create the object. That is the first thing. It's the first thing, right? So how do I do that? Student s1 equal to student. तो student class का static block चल जाएगा. This is the first option. ठीक. Now there is another option.
by using class dot for name, और यहां पर आप लिखते हो class name. So I will just stop this and class dot for name. अब कौन सा क्लास, उसका कंप्लीट पैकेज नेम के साथ आपको स्पेसिफाई करना है. सो वी हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट नेम. सो कौन से इसके अंदर है आपका, इफ यू लुक एट दिस क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा क्लास का नाम है स्टूडेंट पैकेज के साथ. ठीक, अब मुझे बताओ आपने कुछ गलत नाम दे दिया तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, ये है क्या? सो व्हाट ही विल डू, so there will be an issue, right? Class not found exception, abc is not there, right? So there will be an exception. What is that exception? Class not found exception. Now this is there, तो class error नहीं देगा. ठीक, समझे? हाउ डू यू लोड अ क्लास? पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दूसरा है क्लास डॉट फॉर नेम यूज करो. क्लियर? सो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया. कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं हम, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर से. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज देयर. तीनों का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अलग अलग टाइप के. अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटर, और अगर आप कस्टमाइज वैल्यू के साथ देना चाहते हो मैन्युअल वैल्यू के साथ तो आपके पास पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है. राइट, ये है आपके पास. उसके बाद कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमने बताया, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग. कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो? एक कंस्ट्रक्टर से ओनली वन, और वो भी कंस्ट्रक्टर कॉल करने का लाइन सबसे पहले होना चाहिए वहां पर. देयर मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर. सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं हम? दिस कीवर्ड का यूज करके, सुपर क्लास का सुपर कीवर्ड का यूज करके. राइट, नाउ इवन दो यू डू नॉट कॉल अ कंस्ट्रक्टर, व्हिच कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली? सुपर कीवर्ड. Which constructor? Super keyword. So what is constructor overloading, Pushkar? Perfect. So we write multiple constructors in the same class. क्या change होना चाहिए? Number of parameter और type of parameter change होना चाहिए. What is method overloading? Multiple define करना same class में या सब class के, same नाम से, same name से define करना. क्या change होना चाहिए? Parameter change होना. Number of parameters should change और type of parameter should change. So that is something method overloading. Constructor chaining, constructor overloading, types of constructors. What is copy constructor? So we want to create an object using existing object. For that purpose, we use copy constructor. Perfect. Then we talked about what are different types of blocks are there. Instance block and static block. Instance block कब चलता है रामेश्वर? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब. सो जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार आपका इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा. अब इंस्टेंस ब्लॉक प्रोग्राम में लिखना जरूरी है क्या? मैंडेटरी नहीं है, बट कब लिखना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉजिक चले, जैसे ऑब्जेक्ट का काउंट मुझे मेंटेन करना है या कुछ ऑडिट इंफॉर्मेशन रखनी है, लॉग मेंटेन करना है, टाइम स्टैम्प मेंटेन करना है, तब आप जाओगे इंस्टेंस ब्लॉक के साथ. स्टैटिक ब्लॉक कितनी बार चलेगा, कब चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार चलेगा. कब चलेगा? जब क्लास लोड होगा मेमोरी में. ठीक, उसके अंदर क्या लॉजिक लिखना चाहिए हमने? कॉमन, जैसे डेटाबेस को कनेक्शन हो गया, फाइल लोडिंग हो गया, सर्वर कनेक्शन हो गया, ये सारी लॉजिक आप कहां पर लिखोगे? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर. क्लास कैसे लोड करते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास क्लास लोड करने के लिए? दो तरीके आपके पास. क्लास लोड करना मतलब मेमोरी में लेके आना उसको. व्हाट डू मीन बाय क्लास लोडिंग? क्लास स्ट्रक्चर बना के रखा आपने, उसको कहां पर लेके आना है? मेमोरी में. सो दैट इज नथिंग बट लोडिंग अ क्लास इन द मेमोरी. व्हाट डू मीन बाय लोडिंग अ क्लास इन द मेमोरी? क्लास का स्ट्रक्चर मेमोरी में लेके आना. सो उसके आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दूसरा क्लास डॉट फॉर नेम. ठीक, ये दो तरीके हैं. अब लास्ट क्वेश्चन. अब मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक ब्लॉक है, इंस्टेंस ब्लॉक है, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ
execution of static block, then instance block and constructor. So let's try to understand this. तो सबसे पहले क्या चलेगा? तो सबसे पहले क्या चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक, परफेक्ट. ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे जाके भी इसको काम आने वाला है. इसका आधा पार्ट हम अभी देख रहे हैं, आधा पार्ट हम थोड़ा सा जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम उस टाइम पे वी विल कवर दैट. ठीक है. सो आई हैव क्लास ए, देयर आई एम हैविंग इंस्टेंस ब्लॉक, ए क्लास का इंस्टेंस ब्लॉक, then I have static block, then I have a constructor. So क्या क्या है? Instance block, static block and constructor. Now if I run this program, what do you think? What will be the output? There is nothing. Now अभी भी कुछ नहीं. क्लास कब लोड होता है? परफेक्ट. अब क्लास सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले क्लास मेमोरी में लोड होगा, तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे. तो सबसे पहले चलेगा स्टैटिक ब्लॉक, instance block and constructor, right? But there is little more to this. Let's try to understand this. आउटपुट तो ठीक है, आपको ये समझा कि स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर. बट अब यहां से जब क्लास लोड होता है तो कंट्रोल जाता है आपका नो. ध्यान रखना कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है. ठीक है. अभी कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं, राइट? अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले क्लास मेमोरी में लोड होगा. ठीक है. तो यहां से वो कंट्रोल जाएगा, क्लास लोड हो गया, अभी लोड होने के बाद वो चलेगा स्टैटिक ब्लॉक के पास. नाउ कंट्रोल कम्स टू द स्टैटिक ब्लॉक, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस class is loaded. Now once again, now we are back at this, class is loaded. Now there is something called as constructor call. ये क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल. तो कंस्ट्रक्टर कॉल है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कंट्रोल जाएगा ना. ठीक. अब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के पास कॉल आया, यहां पर कॉल आया. तो कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले लाइन कौन सी होती है? इवन दो यू डू नॉट राइट और यू राइट, कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, आइदर सुपर क्लास. अगर नहीं लिखा, अगर आपने एक्सक्लूसिवली कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा, देन दैट विल बी कंस्ट्रक्टर कॉल. तो देयर विल बी by default mandatorily every constructor there is one line of code. What is that? Constructor call. That can be of super class or that can be of same class. अब यहां पर कुछ नहीं लिखा है,
तो सुपर है। क्या बोला मैं, ध्यान रखो, हर एक कंस्ट्रक्टर में सबसे पहली लाइन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टर कॉल, दैट विल बी आइदर सुपर क्लास और दैट विल बी दिस। तो यहां पर नहीं लिखा है दिस, तो क्या होगा, सुपर। अब सुपर में कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, सुपर में कुछ है नहीं। अब यहां पर क्या होता है, जब भी कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल आता है तो वहां पर दो चीज चेक होगा। क्या दो चीज, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल है क्या, अगर है तो कंस्ट्रक्टर का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अगर है तो कंस्ट्रक्टर का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास अभी सुपर में कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कुछ नहीं है, सो दैट इज फर्स्ट चेक। दूसरा चेक आता है कंस्ट्रक्टर में, इज देयर अ इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ द सेम क्लास, इज देयर अ इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ सेम क्लास, अगर है तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो हर कंस्ट्रक्टर में जब भी एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल आता है तो वहां पर पहला चेक क्या है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, अगर है तो, नहीं तो इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक नहीं है तो रेस्ट ऑफ द लाइंस। अब हमारे पास सुपर क्लास का कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कंट्रोल जाएगा कहां पर, इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक खत्म होगा, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द लाइंस इनसाइड द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ लुक एट दिस, यहां से कंट्रोल गया अभी इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक से फिर से हम वापस आ गए कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर का रेस्ट ऑफ द लाइंस आर एग्जीक्यूटेड एंड दैट्स इट। समझे? तो टेक्निकली कंट्रोल कहां पर जा रहा है? सो आपको ये अगर समझा क्या, एवरी कंस्ट्रक्टर वाला लॉजिक, सो एवरी कंस्ट्रक्टर हैज टू इम्प्लिसिट कॉल्स, हैज टू इम्प्लिसिट कॉल्स मतलब ऑटोमेटिक। पहला तो आइदर सुपर क्लास और सेम क्लास कंस्ट्रक्टर, अगर है तो। दूसरा, सेम क्लास इंस्टेंस ब्लॉक, एंड देन rest of the lines of code in the constructor। ये तो क्लियर है? कोई भी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, एवरी कंस्ट्रक्टर हैज दीज टू थिंग्स। समझे ये वाला चीज, कंस्ट्रक्टर की कहानी, ठीक। बट बिफोर यू गो टू द कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सिंगल क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी, देर इज नो पेरेंट चाइल्ड, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए सिंगल क्लास, इन ए सिंगल क्लास देर इज नो पेरेंट चाइल्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक। क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक, देन एंड देन कंस्ट्रक्टर। आई होप दैट मेक सेंस, बट कंट्रोल एक्चुअली जाता कहां पर है, कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर वो लॉजिक है। क्लियर? अगर आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस हायरार्की में, तो थोड़ा सा चेंज है, तो ये बाद में हम पढ़ने वाले, तो अभी बस मैं आपको नोट दे रहा हूं बाद में, सो दैट यू कम बैक एंड सी दैट कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। once you understand the concept of inheritance, you will be able to understand this. So order of execution in a inheritance hierarchy। ठीक है, तो जब हम इनहेरिटेंस कवर करेंगे दैट टाइम देयर विल बी टू क्लासेस। तो थिंक ऑफ दिस, वी हैव पेरेंट क्लास, तो यहां पर उसका इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ठीक, ये होगा पेरेंट क्लास। उसके बाद आपका चाइल्ड क्लास,
ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस एक्सटेंड्स पेरेंट। ठीक, अब इसका भी क्या क्या है, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये कुछ है आपके पास, और ये आपका पेरेंट। तो इस केस में क्या होता है, तो लेट से मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट किसी का भी क्रिएट करो तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, देन स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया एक ही बार। अब मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहां पर सबसे पहली लाइन होगी कौन सी, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर पे आ गए हम, वहां पर भी दो लाइनें होगी, उसका सुपर कुछ है नहीं, दूसरा क्या, इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, देन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ऑफ देन कंट्रोल कम बैक टू द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, वहां पर दूसरा लाइन क्या है, इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास, देन वो खत्म होने के बाद, परफेक्ट, ये आगे चलेगा। तो सबसे पहले तो दोनों क्लासेस लोड होंगे, सबसे पहले पेरेंट क्लास लोड होगा, चाइल्ड क्लास लोड होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में दो लाइनें हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल एंड इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर है क्या, यस है, तो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर जाएंगे, वहां पर भी दो चेक, उसका सुपर या इंस्टेंस, उसका सुपर तो कुछ है नहीं, तो पेरेंट क्लास का इंस्टेंस ब्लॉक वो खत्म हो गया, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, रेस्ट ऑफ द लाइन, सॉरी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर वो खत्म हो गया, कंट्रोल कम बैक टू चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या चेक होगा, इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास वो खत्म होगा, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द लाइंस इनसाइड द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। समझे, क्लियर, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस, बहुत सारे इंटरव्यू मटेरियल, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, यू हैव लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस इन दिस एरिया, ट्राई टू गो थ्रू ये सारा कंटेंट, वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए, आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेस्टेड क्लासेस कवर करेंगे, देन वी विल कवर एक्सेस स्पेसिफायर्स आल्सो नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट शुड बी द plan for the next class. Perfect, so this week we will try to finish off your oops completely by this Monday, today is Monday, right? So by Friday we'll try to cover your oops. So once that is complete, then we cover the majority of your part, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, उसके बाद तो आप आराम से वो चीजें समझ लोगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फाउंडेशन। परफेक्ट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।